आप इसकी बात करेंगे? ये खड़ा है जिसने पटियाला में NIS में सुबह मॉर्निंग वॉक पे वो दोनों IAS ऑफिसर वॉक कर रहे थे, उसका ये कातिल है। किसी ने मूवी बनाई और ये हीना किल्ड इनोसेंट सिविलियन, मोस्ट ब्रूटल अटैक वाज मर्डर ऑफ। जो जमीन जहां भी दुबई में कोई पोएट एंड राइटर आशिकी, तो अभी ये इसके ऊपर पिक्चर नहीं बनेगी। ये गुरविंदर सिंह, ये लोग हैं जिनके ऊपर पिक्चरें बनानी चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ 24। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆંકੜੇ ਤੇ ਤੱਥ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੇहद ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਬਣਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जो 301 से साल का उसे कत्ल करने वाला ये अवतार ब्रह्मा है। आप इसकी बात करेंगे? ये खड़ा है जिसने पटियाला में NIS में सुबह मॉर्निंग वॉक पे वो दोनों IAS ऑफिसर वॉक कर रहे थे, उसका ये कातिल है। किसी ने मूवी बनाई भाई, एक गुरसिख ऑफिसर, यंग ऑफिसर, और जिसने एशियन गेम्स में स्विमिंग कंपटीशन करवाया था वो अविंदर सिंह IP अफसर जिसने इसने शहीद किया, इनको ग्लोरीफाई करेंगे। और ये हीना किल्ड इनोसेंट सिविलियन, मोस्ट ब्रूटल अटैक वाज मर्डर ऑफ। जो जमीन जहां भी दुबई में कोई पोएट एंड राइटर
एक्चुअली तो अभी ये इसके ऊपर पिक्चर नहीं बनेगी। ये गुरविंदर सिंह, ये लोग हैं जिनके ऊपर पिक्चरें बनानी चाहिए। ये दलजीत के रोल में कहीं फिट नहीं आएंगे, ये लोग फिट आएंगे जिनको मैं एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पिक्चर के लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जसवंत सिंह खालड़ा जी जैसे और लोग, सिमरनजीत सिंह मान, हमेशा वो बात करते रहे हैं और उनको कोई किसी ने रोका। जसवंत सिंह जी वो तो सिर्फ इसको किसने जोड़ दिया, जसवंत सिंह खालड़ा, वो तो जो भी वहां पे टेररिज्म के दौरान जिसकी भी मौत हुई, वो एक आग ऐसी थी, चाहे उस क्रिमेशन ग्राउंड में जहां वो सिवे थे, उसमें तो हिंदू भी जो बसों से उतार के मार दिए जाते थे हिंदू, उनकी बॉडीज भी तो थी। बिहार यूपी में जब जो काम करने वाले उनकी बॉडी कहां जाती थी, वहीं क्रिमेट होती थी। तो जो पुलिस वाले मारे जाते थे वहीं बॉडीज क्रिमेट होती थी। तो खालड़ा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया, उन्होंने कभी उसको ऐसे ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। तो जो पिक्चर की बात है, और मैं खालड़ा साहब के धर्मपत्नी जो हमारे रिस्पेक्टेड धर्म, उन्होंने बात की है आज, उन्होंने सब कुछ लिखा है। अभी 84 में कांग्रेस ने क्या करवाया, अकाली दल ने क्या किया, कौन कौन से अफसर लगाए, आज उनका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने बात की है। आज आप उनकी आम आदमी पार्टी जो डीएसपी थे वो कहां चले गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बाकी एक मैं आपके सामने और एक आज विनती करने आया हूं, बिल्कुल भी हमारा किसी का कोई भी मकसद किसी चीज का, मेरा ना मेरी पार्टी का, पर मैं तो अपनी बात करने आया हूं, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हर जो भी सिख धर्म सेवा सर्वत दा भला इंसानियत बराबरी दा संदेश दिंदी, ये है सिखों का संदेश। यहां पे हिंदू सिख की कोई बात ही कैसे आ सकती है। और एक जो बात की है, कल 14 तारीख को हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार जिनको हम सब मानते हैं, वो कल अरदास करने वो जा रहे हैं और उस नदी जहां उस दरिया पे जा रहे हैं जहां पर खालड़ा साहब की बात की जा रही है बॉडी की। मैं जथेदार साहब के आगे हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा सबकी तरफ से, वो अकेली किसी खाड़कू की टेररिस्ट की अरदास वो भी करे, क्योंकि वो भी लोग थे, पंजाबियों थे सारे, मरने वाले तो पंजाबी थे, पर साथ में क्योंकि अकाल तख्त साहब को, दरबार साहब को, जथेदार को सब मानते हैं। एक बात है, जितनी देर सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ। 31, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31। और खालड़ा साहब, उनको जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था, ये देखने की जरूरत है। उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये देखने की जरूरत है। और उनको शहीद किया गया, मारा गया, वो अक्टूबर के महीने में मारा गया। उस टाइम सरदार बेअंत सिंह जी दुनिया में नहीं थे, वो 31 तारीख को चले गए थे। और ना कोई एविडेंस है आज तक, ना किसी ने कहा है उस टेन्योर में 92 से लेके फरवरी 95 में नॉट इवन अ वन सिंगल एफआईआर उनके खिलाफ खालड़ा साहब के नहीं थी। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, खालड़ा साहब बाहर चले गए थे, विदेश रहने, इंग्लैंड लंदन चले गए थे। वो वापस तब आए जब 92 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि पहले गवर्नरी रूल में जो हो रहा था, मैं आपको एक कागज भी दूंगा, जो बम ब्लास्ट होते थे पंजाब में 80s और बिफोर 92 कितने हुए और 92 के बाद कितने हुए, ये आपके सामने, ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री के राकेश कुमार जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका जो आंसर आया हुआ है। और
एक भी उससे पहले खालरा साहब के अगेंस्ट कभी उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। जब मेरे ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक बार कोई उनकी एफआईआर नहीं है। ये जो हुआ 31 अगस्त के बाद हुआ, उस टाइम कौन था, इसके पीछे भी जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा उसमें, क्योंकि पिक्चर में आप कह रहे हो पिक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं, खालरा साहब ने जान दी है। और मेरे ग्रैंडफादर जब 92 में सीएम बने, उस टाइम खालरा साहब वापस आए इंग्लैंड से, और बार बार वो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाते रहे। आज एक छोटा सा क्रिमिनल अगर हो, उसके ऊपर एलओसी जारी की जाती है, लेकिन कभी भी नहीं हुई कोई ऐसा काम, एक किसी एसएचओ पुलिस वाले ने भी उनके ऊपर कभी कोई उंगली भी की हो। तो इसलिए मेरे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, उन्होंने फर्क किया था। गवर्नरी रूल में बाहर से पुलिस ऑफिसर जाते थे, बाहर से आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी लगते थे, गवर्नर जाते थे। उस टाइम पंजाब में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जब 1992 में बेअंत सिंह आ गए, उन्होंने सारी ताकत, पंचायत इलेक्शन कराई, सरपंच बने, पंच बने, उनके इलेक्शन, उनकी सरकार के दौरान कॉरपोरेशन बनी, एमसी कमेटीज बनी, और सारी ताकत है जो वो लोगों के पास चली गई। वो तो पंजाबी थे जो सरपंच बने, जो पिछले 12 साल से नहीं बन रहे थे, जो काउंसलर थे वो नहीं बन रहे थे। वो सारी ताकत जो थी उनके हाथ में चलेगी, और जब उनके हाथ में चलेगी, पीस आ गई, शांति आ गई। जो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम पे जो गवर्नरी रूल था, उस दौरान बहुत चीजें हुई हैं, उसका कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। वो क्या क्या हुआ, क्या क्या खालरा साहब, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी सब गिद्धों की तरह हमें नोच रहे हैं। ये पीड़ा हमें पता है, जहां खालरा साहब को पता है, जब पंजाब के लोगों ने, जिसने वो दर्द झेला है, उनको पता है। अर्जुन सिंह जी थे लुधियाना के, जब टेररिस्ट एक हिंदू को मारने लगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, गोली मारने हुए थे, मारो। और अर्जुन सिंह जी जब गोली मारने लगे हिंदू के ऊपर, तो हिंदू के ऊपर उसने उसको कवर कर लिया। पहले टेररिस्टों को अर्जुन सिंह को मारना पड़ा, एक सिख को मारना पड़ा, बाद में हिंदू के गोली लगी।